Yes, good evening everyone and welcome to day 20 of the Magic Book by Rhonda Byrne. So, how was today's practice? कैसा था आपका मैजिक फुटस्टेप्स? आपने कितने फुटस्टेप्स लिए? कैसे लगा आपको? यस सिद्धार्थ, आपने भी चलते चलते थैंक यू बोला. वेरी नाइस. हाउ ओल्ड आर यू? सॉरी, आई कांट रिकलेक्ट. हाउ ओल्ड आर यू? 7. वंडरफुल, वेरी नाइस. आई हैव अ नीस, शी इज 6 years old. एंड आप अभी से ये स्टार्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. हाँ, यू स्टार्ट डूइंग थैंक यू. आई एम श्योर कि आप बता रहे होगे कि खाने के टाइम, पानी के लिए, टॉयज के लिए, बुक्स के लिए, पेरेंट्स करनी है. वंडरफुल, वेरी गुड. आई एम doing a kid session maybe after the boards exams या after final exams. तो ऐसे तो हितार्थ थोड़ा छोटा है उसके लिए. नहीं, but Preksha is ready. Preksha is ready. Okay, so let's see. So sometime. नहीं, but you should do it before boards because boards are postponed this year, ना? अच्छा, so I'll just see my schedule and see कब है board. 26th April they'll start the boards. Okay, so I'll have to start before 24th March, है ना, ताकि उससे पहले हो जाए. Okay, ठीक है. After Holi. ठीक है. Okay, we'll figure it out. Thank you. Yeah. So yes, सोनिया जी, आपने 4-5 किलोमीटर में आपने थैंक यू कर लिया. That's awesome. हाँ, आप और आपकी मम्मा जाके कर अराउंड टू द बीच में जाके आपने. Oh, that was amazing picture. वही तो फुटस्टेप्स वही का था. I was just thinking, yes, this is. मैंने शायरी बना ली है. शायरी बना ली आपने? शायरी बनाई है, बोलो. मैंने आपके ऊपर शायरी बना ली है. वो मेरे ऊपर? ओहो, आहा हा हा, वाओ, सो स्वीट. It's in the genes. I was about to say नानी से आया है, but very good, very nice. नहीं, he's a very good शायर. Okay. He can instantly make. हाँ. मेरी मम्मी की मैजिकल क्लास मैम का नाम है प्रिया. उन्होंने मम्मी को मैजिक सिखा दिया, इसलिए उनका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. Wow, awesome, so sweet. Thank you so much. That's so sweet of you. Really nice. Thank you so much. And you know the one he made on me. Yes, please share with us. उस वक्त लॉकडाउन में he was watching रामायण very sincerely. हाँ. So that time all his मतलब शायरीज were based on रामायण. तो he made कि मेरी मम्मी का नाम है प्रियंका, सीता जी को बचाने राम जी गए थे लंका. वेरी गुड, वेरी गुड. तो दिस इज अ टैलेंट. ओके, आप उसको देखिए, उसको ये अच्छा लग रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है. एंड दिस इज व्हाट ग्रैटिट्यूड टेल्स अस. जिसको आप दिल से प्यार करोगे, दिल से अच्छे से करोगे, उसी में आपको रिजल्ट्स दिखाई देगा. ओके, सो इफ ही फॉलोज इट, ही विल डू वंडर्स इन दिस लाइन. इन हिज क्रिएटिविटी, वेदर इट्स राइटिंग बुक्स, एसेज, एवरीथिंग, इट विल बी जस्ट अमेजिंग. I don't know what you have thought for him or what he has thought for himself. He's too young for that, but आप उसको definitely इसको आप वो करेगा, encourage करेगा. Okay, so I think let's start with the session. And today's chapter is really एकदम दिल के करीब वाला टाइप का चैप्टर है. So let's start with the warm up and then we'll do the reading. Okay, so please switch on your cameras, unmute yourself, and let's do the little fingers. Do it. 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yes, wonderful. एक तो हैंग कर रहा है. So who wants to read today? I want to read today. Okay, very good, Preeti ji. Where are you from? I am from Jamshedpur. And you've seen Fiona, na? She's my daughter-in-law. Oh, okay. You met her. She's gone for a vacation, so that's why she's not in your sessions. अभी few days पहले ही गई थी वो. हाँ. Okay, very nice. तो अच्छा है, आप पूरा फैमिली जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है ना तो और अच्छा होता है ना. सबको पता है कि अच्छी बात बोलो, हाँ, अच्छे से व्यवहार करो. So every the results are just more amazing. हाँ, अच्छे से घर में बात होती है. आपको पता है, I was just listening to someone and he was sharing, like really learned person. I will tell about him also. He was saying 90% relationships जो खराब होते हैं वो क्यों होते हैं? Because of the tone of our voice. Okay? Because of the tone of our conversation. हम किस तरीके से बात कर रहे हैं उसके कारण 90% relationships खराब होते हैं. Actual words के ऊपर नहीं. हाँ, आप बोलते हैं कर दिया तुमने,
कर दिया तुमने। लाइक आप सोचिए ना, अपन टोन में कितना मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। हाँ, आपने थैंक यू बोला एक प्यार से और थैंक यू गुस्से में बोला, वो पता चल जाता है ना। हाँ, तो टोन कितनी इम्पॉर्टेंट है जब अपन बात कर रहे होते हैं। हाँ, ही वॉज शेयरिंग कि जो दुनिया में जो ये वॉर्स भी होते हैं ना, हाँ, जो कोई एक इंटरप्रेटर था उसने बताया कि माने मैक्सिमम वॉर्स इसलिए होते हैं कि दोनों का ईगो क्लैश होता है, हेड्स ऑफ द नेशंस का ईगो क्लैश होता है, इसलिए वॉर हो रहे होते हैं। हाँ, तो आप देखो टोन, ईगो, ये सब चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप्स में मोस्टली अप्स एंड डाउन, चैलेंजेस, टकरार या जो भी आप उसको लो वो लेके आते हैं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं तो आप देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारी टोन नहीं चेंज होने लगती है। आप तुरंत अवेयर एंड अलर्ट रहते हो कि हमको कैसे बात करनी है, अच्छे से बात करनी है। थैंक यू आप गुस्से से तो कर ही नहीं सकते हो, है ना। सो टोन पे अगर अपन ध्यान दें, अगर अपन चूज़ करें, है ना। आज ही एक शेयरिंग किसी ने फॉरवर्ड किया था ना कि व्हाट यू चूज़। आप चूज़ करोगे ग्रैटिट्यूड, आप चूज़ करोगे पॉजिटिविटी, तो लाइफ में वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद Priya ji, even body language. इवन बॉडी लैंग्वेज। बट क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो। लेकिन एक होता है ना, आप जब बोलते हैं, अगर आपको ऐसे, आज का चैप्टर भी इसी बारे में ही है, आपको क्या चीज़ें याद रहती हैं इन योर लाइफ, आपको क्या याद रहता है व्हेन यू गो टू अ हॉलीडे, व्हाट डू यू रिमेंबर। आपको याद रहता है कि आपको कैसा लगा, आपको ये याद रहता है। उसके बाद बोल हॉलीडे बहुत अच्छी थी, हाँ, उसके बाद आप उसमें बोलते हो उसमें आपने ये किया था, आप स्विमिंग गए थे, कि आप बीच पे गए थे, कि आप ट्रैकिंग गए थे, कि आप स्नो में खेल रहे थे। लेकिन वो सारे एक्सपीरियंस भी आपको कोई फीलिंग्स दे रहे थे, आपके कोई इमोशंस को बाहर लेके आ रहे थे, इसलिए आपको वो चीज़ें याद हैं। तो हमारी याद में भी वही चीज़ें याद रहती हैं, या तो वो बहुत अच्छी आपको लगी होती हैं या आपको बहुत ख़राब लगी होती हैं, है ना। आपको शायद उसके शब्द याद नहीं हो, शायद आपको उसके एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं हो, बट आपको कैसा लगा उस सिचुएशन में, दैट वी रिमेंबर। किसी ने आपसे बहुत लड़ाई की तो आपको क्यों याद रहा कि यू फेल्ट वेरी बैड, यू फेल्ट अपसेट, यू फेल्ट एंग्री। सो व्हाट आर ऑल दीज आर ऑल इमोशंस। और ये कहाँ जाके लगते हैं, टेल मी, आपको कहाँ फील, हार्ट में, है ना। तो आपको जो फील होता है वो ही याद रहता है। ओके, सो ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट, दिस वाज द फर्स्ट लाइन। ये हम तब काइंड ऑफ ये कनेक्ट हो गया। तो फीलिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट। फीलिंग्स कैसे आती हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आप किस थॉट प्रोसेस में, उससे ही आपकी फीलिंग्स आती हैं। सो वी हैव टू चूज टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू चूज टू बी हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। Okay, so with that note, let's start this wonderful chapter and understand why is it important and why the feelings are so important. Yeah. Please start. Gratitude is the memory of the heart. Just Am I one second. clear? Yeah, you are perfectly clear and audible, but let's read, just follow what is showing on the screen. Okay, then you can start with the chapter. So we'll start with day 20. आप यहाँ से पढ़िए, डे 20 हार्ट मैजिक। Okay. या हाँ, प्लीज रीड डे 20 हार्ट मैजिक। चलिए हम ही Day पढ़ते हैं। 20, heart magic. Yeah. Gratitude Now, is the memory. yeah, just one second, Preeti ji. Now, when we look at this picture, what do we see? Heart. Then Yes. And what else? Heart engraved on a tree trunk. हाँ. tree trunk. Yeah, lots of Magic glitter, dust. sparkle on it. Magic dust on it. Sparkles on it. हाँ, yes. Sparkle on it, and I feel, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्काई भी दिख रहा है. Sky, sun rays, and just some trees on the backside also. Yes, trees on the backside, and this could be water, and आपको अर्थ भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना. अब आप देखिए, अगर ये हार्ट मैजिक का चैप्टर है, चैप्टर्स नेम इज हार्ट मैजिक, तो आपने कितने जगह हार्ट बनाया, पेड़ में बनाया है, कितने जनों ने यहाँ पे पेड़ में बनाया है हार्ट? हाँ, कहाँ पे आपने ज्यादा बनाया है? पेपर के ऊपर तो डेफिनेटली बनाया है, कभी बीच पे जाके आपने बीच में Yeah, sand पे भी बनाया है. सैंड पे भी बनाया होगा, ये आपने बीच में, पेपर पे तो सबसे ज्यादा बनाया. कितने आपने स्कूल में अपनी बेस्ट फ्रेंड को हार्ट बना बना के कार्ड्स दिए थे, बताइए. Yeah, lots. Many. एंडलेस. डूडल करते हुए भी आपने कभी पेन आपके हाथ में है तो कोई फ्लावर बनाता है, कोई क्रॉस बनाता है, कोई हार्ट बनाता है, ये कोई ऐसे ऐसे माउंटेन अप एंड डाउन बनाता है ना. तो आप बताइए, रोंडा बॉर्न ने क्यों ये पिक्चर दी है कि पेड़ के ऊपर में हार्ट बना हुआ है, जबकि मैक्सिमम लोग पेड़ के ऊपर जाके हार्ट नहीं बनाते,
है ना। एक तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा, क्या आपके हाथ में है, किससे आप हार्ट बनाओगे, चोट लग जाएगी, कोई कीड़ी चल रही होगी उसके ऊपर, यू विल थिंक ऑफ ऑल दैट। बट पेड़ के ऊपर उन्होंने क्यों बनाया? ऐसे सोनिया जी ने हमको बताया। अच्छा, स्कूल के बेंच पे भी बनाया उन्होंने हार्ट? अच्छा, ओके। नहीं, दैट आई डोंट थिंक आई हैव डन दैट। ये ना पनिशमेंट मिल जाएगा हम लोग को। हाँ, और नहीं वैसे भी मेरे मन में कभी आया नहीं कि इधर उधर कुछ बनाओ, लाइक थिंग्स शुड बी नीट एंड टाइडी एंड प्रॉपर। बट यस, लोग बनाते हैं। वी हैव सीन मॉन्यूमेंट्स पे बना रहता है, कुतुब मीनार हो, सब जगह कुछ ना कुछ ऐसी हार्ट नाम एक तीर जा रहा है उसके अंदर से। वी हैव सीन ऑल दैट। तो अब रॉन्डा बर्न जो इतनी शी मेंशन्ड इन द एक्नॉलेजमेंट्स कि उन्होंने इतना सोच समझ के हर एक पिक्चर को चूज किया है ना, उसके क्रिएशन में, उसकी क्रिएटिविटी में, एवरीथिंग हैज बीन प्रेम प्रॉपर। बहुत उन्होंने थॉट्स, मतलब बहुत टाइम स्पेंड करके उन्होंने हर चीज़ को इसमें सिलेक्ट किया इस बुक के लिए। तो उन्होंने ये पिक्चर दी है। तो सोनिया जी ने जैसे मेंशन किया है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द 5 एलिमेंट्स। अब आप देखिए, जब हमारे हार्ट में हम फील करेंगे, सी द बुक इज़ वेरी इंडिकेटिव। अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि 5 एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। हाँ, शुरू में उन्होंने कहा था यू कैन थैंक द नेचर, द सनराइज, द सनसेट, द डू ऑन द ग्रास, है ना, ये उन्होंने मेंशन किया था। बट उसके अलावा उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा दैट यू शुड बी थैंकिंग द 5 एलिमेंट्स। यस, बट हर पिक्चर में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, और इस पिक्चर में 5 एलिमेंट्स हैं। So is she saying that we have to be very grateful, we have to be mostly grateful for the 5 elements of nature जो हमको हर चीज़ दे रहे हैं? Is that what she's saying? And if we are doing that, are we not attracting everything whatever we want in our life? Yeah. So let's read and find out. Yes, please start. I think I'll read from the screen only. Okay. Gratitude is a memory of the heart. Jean-Baptiste Massieu, 1743-1818, French Revolution activist. Yes. You might have figured out. बस 1 सेकेंड प्रीति जी। अब आप देखिए फिर से हमको ये क्या कह रहे हैं। अब बताइए मेमोरी किस चीज़ का वो है, कैरेक्टर किस ऑर्गन का? Heart. हार्ट का? Brain. Sorry. हाँ, Brain. ब्रेन का, है ना, ब्रेन का ही होता है ना। तो अब अगर वो ग्रैटिट्यूड कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट, हाँ, तो जब आप दिल से कोई चीज़ का शुक्रिया करोगे, दिल से कोई चीज़ आप बात करोगे, तभी उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर आता है ना। अगर आपने ऐसे नॉर्मली बोल दिया आई लव यू, तो कोई मानेगा? जब तक उसको उसमें फीलिंग नहीं दिखाई देंगी तब तक उसको नहीं समझ में आया, उसको लगा ऐसे उसको ज़रूर मेरे से कुछ काम है इसीलिए आई लव यू बोल रहा है। हाँ, दिल से अगर उसने बोला कि हाँ, दिल से नहीं, चलिए अपन फीलिंग से बात करते हैं। जब अपन फीलिंग से कुछ करते हैं तब उस बात का इम्पैक्ट एक अलग टाइप का होता है। चाहे आप सॉरी बोल रहे हो, चाहे बोले नहीं मुझे नहीं जाना, और आप बोलो लाइक योर रोने टाइप की फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, आपके इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, तो सामने वाले को और ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ कुछ चक्कर है भाई, क्यों नहीं जाना चाहती है ये, ऐसा होता है। तो फीलिंग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। शुरू से रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड, है ना। और फीलिंग्स किसका है? हार्ट से ही आती हैं सारी फीलिंग्स। फीलिंग्स तो हार्ट का कैरेक्टर बोला जाएगा, है ना? तो अब ग्रैटिट्यूड इज़ द मेमोरी ऑफ द हार्ट। तो अब अगर हम लोग दिल से शुक्रिया करें, हाँ, तो अगर आपको फीलिंग्स अपनी दिल से आप जनरेट करो, दिल से हर एक काम करो, उसका इफेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, है ना। आप एकदम फील करके बोले नहीं मुझे एकदम भी जाने का मन नहीं है, तुरंत सामने वाला मान जाएगा। और आपने थोड़ा सा ना लाइक नॉर्मल टाइप का बोला तो बोलेगा कुछ नहीं चलो, है ना। तो ये फीलिंग्स कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, वी एक्सपीरियंस दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ग्रैटिट्यूड भी जब हम दिल से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट हाउ डू वी फील द ग्रैटिट्यूड फ्रॉम आवर हार्ट, एंड सेकेंडली हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स, कि आपने जो भी अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है उसमें दिल का क्या काम है। या अच्छा, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, कितने जनों का, आप बताइए आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा होता है? रोमांटिक दिल सॉन्ग में हो तुम, ऑल दिल से कनेक्टेड सॉन्ग्स। ऑल दिल से, लाइक दिल में हो तुम, यस, एंड समवन एल्स। और किसके क्या फेवरेट सॉन्ग्स हैं दिल से? दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानूँ, तो बचपन से सुन रहे हैं, एवरी अंताक्षरी दिस सॉन्ग वुड कम, है ना। हम दिल दे चुके सनम। हाँ, हम दिल दे चुके सनम, यस। दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, वे ऑसम मूवी। या दिल चीज क्या है, एंड दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और पता नहीं गाना है कि मूवी है। गाना दिल वाले दुल्हन, अरे गाना दुल्हनिया ले भी जाएं। फेमस सोनिया, यस, इट्स या वेरी नाइस सॉन्ग।
या दिल दीवाना। दिल। आई नीड एटलीस्ट जितने लोग हैं यहाँ पे मेरे को उतने सॉन्ग्स के नाम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं होगा कि पैसिवली हम लोग करते हैं दिल से आपको मैं सेशन दिल पे है कि get करना मानता होगा। नहीं। हाँ, दिल है कि मानता नहीं, यस। एंड दिल दीवाना। यस, ओ यस, यू कैन सिंग आल्सो। हाँ, दिल तो गाया जा। दिल दिल तो गाए जा। बेकरार। दिल तो है दिल। दिल तो है दिल, यस यस अलका जी, वेरी गुड। एंड दिल क्या चीज है, आप दिल हमारी दिल जान प्यार प्यार। लीजिए। हाँ, दिल विल दिल प्यार चीज प्यार, क्या है, आप यस हमारी जान पल लीजिए। पल दिल के पास तुम रहती हो। यस, ऑसम, यस। हाँ, दिल है के मानता नहीं। दिल है कि, और जिसने नहीं बताया दिल प्लीज वो दिल भी दे बताइए। चुके सनम। हाँ, हम दिल दे चुके सनम, दैट्स एन ऑसम सॉन्ग अगेन, या दिल चीज क्या है, आप हमारी जान लीजिए। ये तो हो गया, 3 बार हो गया ये। और न्यू माने सैड सॉन्ग बट दिल के अरमान आंसू दिल में तो बह है, गए। नहीं दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। वो सैड सॉन्ग नहीं सुनने मेरे को दिल के बारे या में। दैट्स हैप्पी। वन। हाँ, है अपना दिल तो आवारा। यस, वेरी दिल गुड। देके और जब सब, देखो, दिल देके And देखो, दिल देके देखो जी। यस 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 जया जी, एंड एग्जैक्टली। दिल का हाल सुने दिल वाला। हाँ, वाओ, ऑसम। तो अब देखिए कितने सारे सॉन्ग्स हमको दिल के ऊपर आते हैं। हाँ, तो दिल बॉलीवुड दीवाना हमेशा है। ही आगे है। यस, हाँ, बॉलीवुड हमेशा ही दिल के मामले में आगे है। इसीलिए देखिए बॉलीवुड के कितने ज़्यादा फैंस हैं, चाहे रशिया जाइए, जापान जाइए, चाइना में भी पीपल आर वॉचिंग बॉलीवुड, एंड यूएस एंड यूके में तो हैं ही बिकॉज ऑफ द इंडियंस देयर ऑल्सो। कितने लोग, इसीलिए आई थिंक लाइक एवरी वन इज क्रेजी। सो अब अगर हम लोग हर चीज़ दिल से कनेक्ट करके बोलें, हाँ, तो हमारी लाइफ और ज़्यादा अच्छी होगी। दिस इज़ व्हाट द चैप्टर इज टेलिंग अस। एंड हम लोग को पता भी है, हम लोग हमेशा से ही दिल के सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा दिल के करीब रख के ही रखते हैं, या। सो लेट्स रीड हाउ वी इनकॉर्पोरेट दिस फ्रॉम द हार्ट एंड मेक आवर लाइफ मोर मैजिकल। या, प्लीज स्टार्ट। You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world यस, increase too. या ये कह रहे हैं कि जब हम अंदर से फीलिंग करते हैं, लाइक सी दिस इज व्हाट ना, कि अगर हम अंदर से फीलिंग करेंगे, लाइक हम लोग दिल से फील करें तो इट इज इनसाइड आवर बॉडी, आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चीज़ें बढ़ जाएंगी? वो चीज़ें बढ़ जाएंगी जिसमें हमको और ग्रैटिट्यूड करने का मौका मिले, है ना? तो अगर आप किसी को जेन्युइनली बोल रहे हो, यू नो, कि आई लव यू, दिल से आप उसको बोल रहे हैं आई लव यू, तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर आप दिल से नहीं बोल रहे हो, आपने सिंपली यू नो कि कुछ ऐसे ही बोल दिया कि हाँ आई लव यू, तो उसका इफेक्ट डिफरेंट टाइप का होता है। अगर आप दिल से थैंक यू बोल रहे हो, दिल से सॉरी बोल रहे हो, यू रिमेंबर दैट मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो ना, वो मूवी मेरे को एकदम बहुत, दिस इज अ सुपर मूवी बाय द वे, हाँ, जिंदगी ना मिले, दैट्स व्हाट आई, Awesome. ऑसम मूवी। और उसका एक एक डायलॉग या बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं उसके अंदर ना। यू हैव ओनली वन लाइफ, तुमको क्या पता तुम 40 के बाद जिंदा रहोगे कि नहीं। रिमेंबर दैट कटरीना कैफ टेल्स टू ऋतिक रोशन, लाइक सो मैनी थिंग्स। इफ वी नाउ व्हेन यू स्टार्ट सीइंग मूवीज, यू नो, अब हमको अवेयरनेस आ गई है कि क्या बोलना है, क्या सुनना है, हाँ, किसको अपने अंदर लेना है। तो नाउ व्हेन यू विल सी थिंग्स, अब आप उसको डिफरेंट तरीके से आप उसको परसीव करोगे, उसको समझोगे डिफरेंट तरीके से। तो उसी में ही वो ऋतिक रोशन फरहान अख्तर को बोलता है ना कि जब तुम्हें दिल से सॉरी आएगा ना, तब तुम बोलना, बिकॉज उनके गर्लफ्रेंड का कुछ हुआ होता है ना चक्कर, समवन रिमेंबर्स, वो 2 बार उसको सॉरी बोलता है, फिर बाद में जब वो उसको सॉरी बोलता है यस दिस वॉज दिल से। तो जब आप दिल से कुछ भी काम करोगे तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर दिखता है। तो दिस इज़ व्हाट शी इज टेलिंग कि जब हमारे अंदर से ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आप अभी तक सिर्फ डेलिबरेटली थैंक यू बोल रहे थे, आपके मन में फीलिंग्स नहीं आ रही थी, तो जब आप अंदर से फीलिंग्स बढ़ा के बोलोगे तो आउटसाइड वर्ल्ड में उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा। कैसे होगा ज़्यादा? आपको और मौके मिलेंगे हैप्पी होने के, मैजिक्स आपको और दिखाई देंगे। सो दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग कि अभी तक जो अपन लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें फीलिंग लाने की जस्ट कोशिश कर रहे थे, हाँ, तो अब आज की प्रैक्टिस से हम उसमें और ज़्यादा पावर लेके आएंगे, बिकॉज वील बी यूजिंग द ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स फ्रॉम आवर हार्ट। या जस्ट वन सेकेंड, लेट वो उसका मोबाइल फोन फेंक देता है ना, दैट टाइम ये वो लोग डिस्कशन करते थे, वो बोलता है उसको। यस, उस समय सॉरी, हाँ, इसमें थोड़ा सा, या प्लीज रीड। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time,
You will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. या The तो heart, रंडा बन कह रही है, अगर आप कोई चीज़ लगातार करते रहो बहुत दिनों तक, तो आपके दिल में ऑटोमेटिकली उसकी फीलिंग जाग जाएंगी। हाँ, इसका एग्जाम्पल तो ऐसे हम आपको क्या दें, लाइक आई हैव अ यंगर ब्रदर। तो जब वो छोटा था तो माई मॉम वॉज लाइक कि सबको कुछ कुछ सीखना चाहिए। माई मॉम वॉज ऑलवेज लाइक दिस कि एंड ही वॉज अ चबी किड, आई वॉज ऑल्सो वेरी चबी गर्ल। तो उसको मम्मा ने तबला का क्लास ज्वाइन कराया। क्लास इन द सेंस द टीचर यूज टू कम होम एंड तबला सर जो थे एकदम लैंकी पैंकी पतले से, एंड ही हैड अ स्मॉल बियर्ड और चश्मा पहनते थे, बहुत ही पतले से थे। एंड माई ब्रदर वॉज दिस क्यूट चबी गाय एंड ही वॉज जस्ट इन क्लास 3-4। तो क्या हुआ, अब वो तबला बजाने का उसका मन नहीं करता। जैसे रहता है कि बच्चे लोगों को मम्मा लोग बोलती नहीं तुमको करना ही है ये क्लास, करना ही होगा ये वो जो भी। तो उसको फोर्सफुली तबला कराया जाता था। हाँ, एंड उसके बाद बीच में उसने क्या किया, एंड ही वॉज लाइक, हम लोग 3 सिस्टर्स थे, सबसे छोटा भाई था, थोड़ा पैम्पर्ड भी था। दो इट वॉज जस्ट मी मॉम, लाइक हम लोग थे और मम्मी पापा थे। वी डिड नॉट हैव एनी रिलेटिव्स इन आवर हाउस दैट टाइम। तो अभी भी दैट वॉज अ न्यूक्लियर फैमिली बेसिकली। तो एक दिन उसने क्या किया एंड वो दूसरे रूम में तबला बजाता था एंड उसका साउंड बहुत अच्छा होता था, लाइक दैट इज़ व्हाट द तबला सर यूज्ड टू से। वो एकदम मेरे भाई का मन नहीं करता था, बट तबला सर भी इसीलिए आते थे बिकॉज ही फेल्ट माई ब्रदर हैड सम टैलेंट, लाइक ना। तो उनको भी लगता था कि इसको सिखाओ। कई जन होते हैं नहीं आता भाई छोड़ के चले जाओ, पर नहीं उसका नहीं है इंक्लिनेशन, छोड़िए। इंक्लिनेशन तो नहीं था बट उसका उनको टैलेंट दिख रहा था। तो अब क्या हुआ, मेरा इतना नॉटी ब्रदर था, छोटा था, खैर सभी बच्चे थोड़े से चंचल तो होते हैं। सर आए एक दिन नीचे, बोला बहुत आप इसको समझाइए। पता है इसने क्या किया, मॉम वाज लाइक आल्सो शॉक कि क्या किया। आज उसने मेरी दाढ़ी नोच ली। आई वाज लाइक एवरीवन वाज लाइक शॉक्ड। हाँ, एंड वी वर लाइक नो लिटिल लाइक हाउ कुड ही डू दैट, हम लोग ये सोच ही नहीं सकते। हाँ, तो अब आप सोचिए मम्मा ने उसको जो भी समझाया होगा, वो छोटा था तो हम लोग भी थोड़े थोड़े छोटे ही थे, वो इतना नॉटी था। मैंने अब सोचो, फिर भी तबला सर आते थे, अब सोचो फिर भी आते थे, वो उसको सिखाते थे। एंड आफ्टर दैट माई ब्रदर वेंट टू बोर्डिंग स्कूल। वहाँ पे बिकॉज उसने इतने साल जैसे भी सर ने उसको संभाला या उसने सर को संभाला, गॉड नोस, उसको उसमें इंटरेस्ट आ गया। एंड फिर जब वो वहाँ गया हॉस्टल, वहाँ पे उसका इतना अच्छा हुआ कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाता था। तो इट्स लाइक इफ यू फॉलो समथिंग रेगुलरली, ग्रेजुअली आपका उसमें इंक्लिनेशन आ जाएगा। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। और आपने भी मे बी फील किया होगा, ओके, कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। शुरू शुरू में आपको लगता होगा कि नहीं यू आर फोर्स टू डू इट, बट ग्रेजुअली यू स्टार्ट गेटिंग फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट थिंग दैट यू आर डूइंग। आपको कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है, देन उसमें आपको रिजल्ट दिखने लगता है और फिर वो और अच्छा होने लगता है। तो आज की प्रैक्टिस रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि अगर हम लोग इसको करेंगे तो नॉर्मल आपको करते करते जिसमें ज़्यादा टाइम लगता उसका रिजल्ट आने में, उसमें फीलिंग्स आने में, आज की प्रैक्टिस क्या करेगी, उस टाइम को कोलैप्स कर देगी, उस टाइम को श्रिंक कर देगी। कि मे बी पहले आपको 2-3 महीना प्रैक्टिस करना पड़ता ग्रैटिट्यूड, फिर आपकी जाके फीलिंग्स आती हैं। आप मैजिक डस्ट कर रहे हो, आपको फीलिंग नहीं आ रही है, आप वाटर ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आपको फीलिंग नहीं आ रही है। तो शी इज सेइंग इफ वी डू इट with this practice, if we combine it with this practice, तो हमारा वो जो टाइम 2 महीना होगा या मे बी 1 साल होगा, आई डोंट नो किस लेवल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टाइम श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होएगा तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी उतना जल्दी रिजल्ट आएगा लाइफ में, है ना। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, टुडेज प्रैक्टिस विल डू दैट, इट विल कोलैप्स द टाइम, इट विल श्रिंक द टाइम कि हमारी फीलिंग्स और जल्दी और स्ट्रॉन्ग डेवलप होने लगें। क्या प्लीज रीड। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude. By focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it. But it is worth the effort. After a few times, you will get it. And each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially.
या तो रॉन्डा बर्न कह रही हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम जब थैंक यू बोल रहे हैं तो हमको मन में सोचना है कि दैट थैंक यू इज कमिंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट। अब आप देखिए कैसे वो आएगा, डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट, वी हैव टू फोकस आवर माइंड ऑन द एरिया ऑफ आवर हार्ट। सबको पता है हमारा हार्ट किस तरफ होता है, एवरीवन नोज? लेफ्ट। यस, वेरी गुड, थैंक यू, दिस वाज अ वेरी गुड जीके क्वेश्चन। अच्छा, उसका साइज क्या होता है आपको पता है? द साइज ऑफ योर फिस्ट। Yes, very good. जिनको नहीं Size of पता your था, fist. yeah, your heart is the size of your fist and your stomach is the size of your two fists. इतना बड़ा स्टमक होता है और हम लोग खाते कितना है, we all know, ठीक है? तो आप लोग नहीं, वो एक्सपैंड हो जाता है ना, खाते हैं तो थोड़ा सा उसमें स्कोप होता है। सॉरी, आई वॉन्ट नो व्हाट इज हैपेंड टू मी। हाँ, तो ऐसे रहता है। तो आप देखिए, शी इज टेलिंग यू फील, यू कैन इंक्रीज द डेप्थ ऑफ दैट यू फील अगर अपन अपना दिमाग, अपना फोकस अगर हम हमारे हार्ट की तरफ रखें। अच्छा, आप एक चीज़ और देखिए, हार्ट के लिए कितने सारे हम लोग एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, है ना? कैसे कैसे आप बताइए। हार्ट वो एक कोई इंसान है कि वो एक ऑर्गन है? हम लोग क्या क्या बोलते हैं? पत्थर दिल, हाँ, दरिया दिल, हाँ, कठोर दिल, सॉफ्ट हार्टेड, लाइट हार्टेड, है ना? हाँ, दिल से बने हम लोग इतनी सारी चीज़ें किसके बारे में बोलते हैं? आप कोई और चीज़ों के लिए बोलते हो कि लिवर बहुत हार्ड है, हाँ, स्टमक बहुत सॉफ्ट है, ऐसा बोलते हो कभी? सिर्फ हार्ट के लिए बोलते हैं। वो भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी सारी फीलिंग्स दिल से ही निकलती हैं। अगर आप एक्चुअल में हार्ड हार्टेड हो, हाँ, कंजूस दिल वाले हो, या इस टाइप की जो भी आप एडजेक्टिव्स बोलते हो, वो भी सिर्फ अपन पूरी बॉडी में सिर्फ हार्ट के लिए बोलते हैं। कोई कोई आंखों के लिए भी बोलते हैं, टंग के लिए भी बोलते हैं, जुबान के लिए भी बोलते हैं, बट मैक्सिमम टाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्ट। आपको पता है, जैसे उन्होंने कहा ना, ग्रैटिट्यूड इज़ द मेमोरी ऑफ द हार्ट। साइंटिस्ट ने 1991 में ये रिसर्च करके प्रूव किया है कि एक्चुअल में हार्ट में मेमोरी होती है। उसमें आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, कुछ तो भी जो नर्व्स होते हैं ना, कुछ डिफरेंट टाइप के, वो हार्ट में होते हैं। उस हार्ट को याद एक्चुअल में रहता है। तभी आप देखिए, आपको लगेगा कि कैसे याद रहता है, वो तो दिमाग का काम है। लेकिन दिमाग क्या करता है, आपके घर में अगर मेड से कोई ग्लास टूट जाए, या आप मेड से ही सपोज सोचते हैं, कोई आपकी हेल्प से कोई ग्लास टूट जाए, तो आपको गुस्सा आता है, आपका रिएक्शन कैसा होता है? इसके पैसे काट लेंगे सैलरी से। ये किसका डिसीजन होता है, हार्ट का कि माइंड का? टेल मी। एग्जैक्टली, माइंड का होता है। दिल क्या बोलता है? कोई बात नहीं, किसी से भी टूट सकता है, मेरे से भी तो टूट सकता था, उसकी सैलरी काट लेंगे तो कैसे चलेगा, हाँ, मैं अगर मेरे बच्चे से टूट जाता तो हम क्या करते? तो ये चीज़ें दिल से आती हैं। और आप मैक्सिमम टाइम देखिए, जो दिल से आंसर निकलता होता है ना, वो ही सबसे क्विक और फास्ट होता है। दिमाग बहुत एनालाइज करता है, हाँ, कि सही है गलत है, ये सब दिमाग करता है, दिल नहीं करता है। आपको लगता है सही खाने का मेरा मन है, आज पुचका खाने का मेरा मन है, चॉकलेट, तुरंत दिमाग बोलेगा नहीं मत खाओ, कल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं, वो तो मेरे फायदे के लिए बोल रहा है। लेकिन कितने सारे और भी चीज़ें होती हैं जो हमको दिल से सुन के ही हम लोग वो डिसीजन लेते हैं। आपका दिल कह रहा है, सपोज वी से तेंदुलकर का दिल कह रहा है कि क्रिकेट खेलना है, उसका दिमाग कह रहा है नहीं, क्लास 10 के एग्जाम्स देने हैं। अगर वो दिल की बात नहीं सुनता तो क्या होता? आज वो मास्टर ब्लास्टर बनता। हाँ, तो कितने सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो दिल से ही होते हैं। हम जब बॉर्न होते हैं, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है, वेन डायर ने भी यही कहा है, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो सिर्फ हमारा हार्ट हमको याद दिलाता रहता है, ब्रेन नहीं दिलाता है, वो हमारा हार्ट याद दिलाता है। बिकॉज एवरी वन ऑफ अस इज बॉर्न विद अ पर्पस। एवरी वन ऑफ जो सोल जो भी जन्म लेती हैं, वो कुछ ना कुछ सीखने, समझाने, कुछ करने के लिए आती हैं। वो सिर्फ दिल को याद रहता है, ओके, उसी को पता रहता है, और वो ही हमको याद दिलाता है कि ये सही है, ये गलत है। अगर आपका मन करता है कि एक बेगर स्ट्रीट में है, हाँ, वो कुछ मांग रहा है, तो आपका दिल ही बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको दे दो। दिमाग बोलेगा नहीं, तुम उसको दोगे, फिर वो और मांगेगा, फिर वो काम नहीं करेगा, तुम तो इसको प्रमोट करो। ये सब बातें दिमाग की होती हैं। तो देयर आर मेनी टाइम्स दैट वी शुड बी फॉलोइंग व्हाट आवर हार्ट इज सेइंग, ओके, वी शुड लिसन। बोलते हैं ना, दिल की सुनो, दिल की सुनो, है ना? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तभी भी हम लोग अपना दिल यूज़ करें, उसमें फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग करके करेंगे तो और जल्दी रिजल्ट आएगा। एक और चीज़, हमने ये बात करी थी ना वाटर वाले चैप्टर में, कि दिमाग में, ब्रेन में कितना % वाटर है? 80% ब्लड है ना? और 80% वाटर बोलते हैं हम लोग, ब्रेन में 80% वाटर है। और फिर सोचिए उसका मैग्नेटिक पावर कितना होएगा? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हार्ट का मैग्नेटिक पावर 5000 टाइम्स ज़्यादा है।
पता है आपको 5000 टाइम्स मोर पावरफुल इज द हार्ट, मैग्नेटिक पावर, और उसका क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रॉनिक पावर जो भी होता है, आई एम फॉरगेटिंग क्या बोलते हैं उसको, वो 100 टाइम्स और है, मोर देन द हार्ट, मोर देन द ब्रेन। तो आप सोचो अगर हम लोग दिल से कोई चीज़ फील करें तो उसको कितने जोर से हम लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएंगे उतना जल्दी हम अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो हमको चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट दैट। जितनी फीलिंग स्ट्रांग होंगी, जितनी आपकी वाइब्रेशन अच्छी होएगी, उतनी जल्दी आप जो चाहते हो वो आएगा। बोलते हैं ना, इफ़ यू थिंक इट इन योर माइंड एंड फील इट इन योर हार्ट, देन यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। तो जितना ज़्यादा आपकी फीलिंग स्ट्रांग होगी, किस टाइप की फीलिंग, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, आप जितना विजुलाइज कर लो, लेकिन अगर आप दिल से उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं ऐड कर रहे हैं तो उसमें उतना टाइम लगेगा। आप बोलोगे मैं तो 1 साल से विजुलाइज कर रही हूँ, एक एक डिटेल मैंने विजुलाइज कर ली कि ये कलर का लहंगा होगा, उसमें इतने सारे गोल्डन कलर की जरी होएगी, घुंघरू ऐसे होंगे, ये ऐसा हो, मेरी शादी नहीं हो रही, आप ये बोल रहे हो। तो आपने उन सब चीज़ों में कितनी फीलिंग्स डाली हैं, कितना ग्रैटिट्यूड किया है, उस पर डिपेंड करता है कि लाइफ में कितनी जल्दी कुछ भी मैनिफेस्ट होएगा। ओके, एक और चीज़ ना हो, इफ़ वी कम बैक टू द चैप्टर, ये सारी बातें पावर बुक में और अच्छे से दी हुई हैं। इसमें कह रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च ने कहा है कि हमारे जो दिल की धड़कन है, दैट लब डब साउंड, हाँ, वो ना कि हमारे इम्यून सिस्टम को जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग स्लो इवन पेस में रहता है, उतना ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। अभी जो इम्यूनिटी है, आप ये सोच सकते हो कि खाली बॉडी की इम्यूनिटी है कि कुछ इन्फेक्शन नहीं हो, सिर्फ ये इम्यूनिटी बोलते हैं क्या अपन क्या बोलते हैं, ही इज़ इम्यून टू माई वर्ड्स, ये भी तो बोलते हैं अपन ना, बोलते हैं ना कि हम उसको कुछ बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे, इज इम्यून टू मी। तो वो कौन डिसाइड करता है, वो भी आपका हार्ट डिसाइड करता है कि आप दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इफ़ आई एम हैप्पी, हैप्पीनेस कहाँ पे डिटरमाइन होती है, आपके दिल से ही होती है। हाँ, इफ़ यू आर सैड, कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो भी आपका हार्ट डिसाइड करेगा। yes, so if you are happy in your heart, if you are happy in your nature, तो आप इम्यून हो जाओगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब आप इम्यून हो जाओगे, आप हैप्पी रहोगे, आप गुड फीलिंग्स में रहोगे, तो आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो शी इज़ टेलिंग दैट इफ़ द हार्ट इज़ हारमोनियस, ओके, इफ़ द हार्ट बीट इज़ हारमोनियस, आपकी लाइफ में हर तरीके से शी सेइंग मेजर इंप्रूवमेंट थ्रू योर इम्यून सिस्टम एंड हेल्थ, उसमें भी होएगा। ओके, सो इससे हम सबको समझ में आ गया कि हार्ट कितना पावरफुल है। हमको हार्ट से अपनी फीलिंग जनरेट करने के लिए क्या करना है, जब आप थैंक यू बोलो, ओके, चाहे आप अपनी ब्लेसिंग्स के बाद बोल रहे हैं, चाहे आप अपने फूड के लिए बोल रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप थैंक यू आज तक बोलते आ रहे हैं, अब आपको इमेजिन करना है, अब आपको विजुलाइज करना है कि आपके दिल से ये जो लब डब साउंड है, दैट इज सेइंग थैंक यू। ठीक है, एंड शी इज सेइंग इफ़ यू आर feeling like that and then we are saying thank you, our gratitude will increase exponentially। exponentially किसी को ध्यान है मैथ्स में कैसा होता है, याद है हमने सबने पढ़ा था 2 to the power of 2, yes, 3 to the power of 3, तो 3 into 3 बढ़ता है ज़्यादा कि 3 into 3 into 3 बढ़ता है ना। डेफिनेटली जो पावर वाला होता है वो सबसे जल्दी नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो शी इज सेइंग अगर हम लोग सिर्फ थैंक यू बोलते टाइम थोड़ा सा अपना अटेंशन, अपना फोकस अपने हार्ट की तरफ करें कि ये जो थैंक यू हम कर रहे हैं वो दिल से निकल रहा है, तो फीलिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, यू विल बी अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, यू विल अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you've practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. यस, तो शी इज़ टेलिंग अस दिस ओनली कि आप जब थैंक यू बोल रहे हो और हार्ट मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, लाइक आज की जो प्रैक्टिस है, जब ये कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, अपना दिमाग आपको दिल के एरिया में ध्यान में लगाना है, ठीक है, और आपको आंखें बंद करके थैंक यू बोलना है, ठीक है, और जितने बार हम ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए, हमारे लिए ये ईजी होता जाएगा। ओके, सो एवरीवन नोज व्हाट योर टॉप ड्रीम इज़। आप सबने डे 13 पे ड्रीम लिखी थी, शायद आपने एक आध बार उसको पढ़ भी लिया होगा पिछले 7 दिन के अंदर। हाँ, पढ़ लिया आपने? सो एवरीवन नोज, से यस और जस्ट या गिव अ थम्स अप। या
So now what we are going to do is we are going to use this heart magic on your top dream. Whatever I will say, आप सुनोगे, उसको फॉलो करोगे और आपकी ड्रीम आपके दिमाग में होगी, ठीक है? लाइक इट इज़ देयर, आपको रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको डिटो याद करना है, सब कुछ करना है। मोस्टली यू विल फॉलो वट एवर आई एम सेइंग, बट फोकस योर माइंड ऑन योर हार्ट. Okay, so I request all of you to sit straight. Close your eyes. Put your right hand in the area of your heart. Your heart. Take a deep breath in and a long breath out. One more time. Take a deep breath in and a long breath out. Bring your attention to the area of your heart. This was the sound the doctor heard and told your parents that the baby is fine. Your heart has been with you even before you were born. Your mom felt it and felt happy. She said, "Yes, this is my baby." Thank you, my little heart, for giving this joy to my parents. When you were born, you cried, you smiled, you laughed, you felt the love in your heart when you looked at your mom and looked at your dad. When you started going to school, you had your first crush, your teacher or your friend, your soft toy. Your heart made you realize that this is what you love. When someone snatched your toy, you cried. You felt heartbroken. Your heart made you feel each and everything. The joy, the happiness, the heart remembers. The strong heart, the soft heart, it remembers all your memories, all your good things, it remembers. When you look at your loved one, it starts beating faster. When you see something sad, it cries with you, it remembers, it feels. Thank you, my strong and healthy heart, for being with me always, for feeling with me always. Thank you, my beautiful heart, for remembering my friends, my childhood sweetheart, my favorite things, my not so favorite things. You remember everything. Thank you, my strong heart. My top dream is fulfilled. I'm so happy. I have achieved whatever I had wanted earlier. Each and everything. I'm so happy, I'm so grateful, I'm so joyful for achieving my dream. My health, my relationships, my wealth, everything is super. Thank you, my strong heart. I'm so grateful that you are listening to me all the time, that you are praying with me all the time.
that you are feeling with me all the time. Thank you for all the gratitude. Thank you for each and everything that I have received. You made it possible. I'm joyful. I'm so happy. I'm excited. When I get upset, you tell me it's all right, let's move on. When I am happy, you rejoice with me. Thank you for feeling with me. Thank you for letting me feel this gratitude. Thank you for fulfilling each and every dream of mine. Thank you, my strong and healthy heart. Your dream is fulfilled. Whom are you sharing it with? Your heart is beating faster to share it with everyone. It is happy. What are you doing when your dream is fulfilled? What is the first thing that you did? Feel the gratitude that it is fulfilled. Thank you, God, for fulfilling my dream. What are you wearing? Who is with you? Imagine, visualize, and feel grateful for all these things. Thank you, thank you, thank you. Thank you, my healthy and strong heart. Take a deep breath in and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. Bring your attention to your nostrils. Feel the inhalation and the exhalation. Now gently and slowly open your eyes. So how many of you had felt your heartbeat before or earlier? Ma'am, we felt. I felt. Yeah, even I felt it. Okay, very nice. So before this session, did you ever check, yes, this is how your heartbeat is? Did you pay attention to it? Hmm? Yeah. So when you're doing your visualization, you can always put your hand on your heart and feel the gratitude they'll say. Okay. So when you're writing your blessings in the morning, you can put your hand on your heart and say the thank you, thank you, thank you. After you're writing, you can, whenever you are reading it, you put your hand on your heart. This is what I do, and then you read it. Have you seen most of the actors, Shah Rukh Khan, all of them, like whenever they are, they accept like this. आप उनको कुछ बोलो, like we have seen in the movies only, or uh, in the award ceremonies, or when they are being interviewed, वो लोग तभी करते हैं ना, उनसे कुछ पूछो तो लोग तुरंत they accept or acknowledge with their hand on their heart. So I think Sonia ji had only shared in one of the earlier sessions कि मुस्लिम कम्युनिटी में तो ऐसा बोला ही है कि आपको दिल पे हाथ रख के ही उसको कुछ एक्सेप्ट करना है ना सोनिया जी? You had shared this? Yeah, I think आपने ऐसे बोला था, और someone had shared this. So आप देखो, जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं, this is what the chapter is also telling us, that you have to feel it from your heart. You have to, और ऐसा करने से ऑटोमेटिक आप लगोगे कि हाँ आप दिल से ही कर रहे हो.
है ना? सो व्हेनेवर यू आर सेइंग थैंक यू, आप इमेजिन करो वो दिल से निकल रहा है. दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज अबाउट. एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, दैट इज व्हाट आई हैव मेड अ प्रैक्टिस, दैट जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं तो हम अपने लाइक आई पुट माई हैंड ओवर योर, रीड इट एंड देन आई से द थैंक यू. ओके, सो उससे आप देखोगे आपको ऑटोमेटिक और अच्छा लगने लगेगा. आप ऐसे करके गुस्सा नहीं कर सकते. ट्राई इट आउट, ला के देखो ऐसे कभी. नहीं कर पाओगे. हो सकता है कर लो, हाँ, बट आप जब ऐसे करके बोलोगे ऑटोमेटिक एक सॉफ्टनेस आ जाती है. ओके, सो ट्राई इट एंड शेयर. Okay, so this is what she's telling us, that when we feel like this, we'll automatically start feeling more gratitude. She's saying जब आप कल ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपनी आंखें बंद करके करनी है प्रैक्टिस. So let's read what the real practice is. Yeah, please continue. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine that the magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes. Focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you, slowly. Again, you can use the tips I've given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you're able to reach. Sorry. Yeah. You will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. या तो कल की प्रैक्टिस क्या है कि आपने जो अपनी टॉप 10 ड्रीम लिस्ट बनाई थी ऑन डे 13, उसको आपको पढ़ना है. और कैसे पढ़ना है? आपने अपने दिल पे हाथ रखा. ओके, यू पुट योर राइट हैंड ऑन द एरिया ऑफ योर हार्ट. आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है, किसी को नहीं पता, आपको अप्रोक्सीमेट ही रखना है. ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट रखोगे कि हाँ यहीं कहीं से यहीं पे है. हम लोग को तो पता है ना कि कहाँ है. हाँ, लेफ्ट साइड में आप अपना हाथ रखोगे. आपने अपनी एक ड्रीम पढ़ी और आंख बंद करके देन यू से थैंक यू. आप जोर से भी पढ़ सकते हो, धीरे से भी पढ़ सकते हो. लाइक यू कैन रीड इन योर माइंड और यू कैन रीड आउट लाउड. ऐसे करके आपको और एकदम दिल से आपको थैंक यू फील करना है, एज इफ वो ड्रीम आपकी पूरी हो गई. आपने ऐसे ही लिखा है ना कि वो ड्रीम पूरी हो गई है. हाँ, कि आपको घर मिल गया है, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई है, आपके पैसे बहुत सारे आ गए हैं आपके बैंक अकाउंट में, है ना. जो भी आपने लिखा है, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हुई, जो भी आपने लिखा है, आपने ऐसे ही लिखा है कि वो हो गई है ना. तो आपको उसको पढ़ना है और अपना हाथ दिल पे रखते हुए पढ़ना है. एंड देन यू हैव टू से आंख बंद करके थैंक यू, एज इफ एकदम बहुत दिल से, लाइक आप. और आप ये थैंक यू किसको बोल रहे हो? आप तो सुप्रीम पावर को बोल रहे हो. सुप्रीम पावर कहाँ है? मुझको क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे. Inside us. यस, सो इट इज इनसाइड यू. तो और ये कौन सुन रहा है? व्हेन वी आर सेइंग दिस, तो हम जो एक्चुअल थैंक यू बोल रहे हैं, द हम बोलते हैं ना, हम लोग परमात्मा हमारे अंदर है, हम परमात्मा के एक अंश हैं. यू आर एक्चुअली सेइंग दैट फ्रॉम योर हार्ट टू योर हार्ट. आप ऐसा सोच सकते हो ना. तो आप सोचो जितना ज़्यादा आप थैंक यू फील करके बोलेंगे उतना ज़्यादा ये और स्ट्रांग होगा. जब हम प्रे करते हैं तो आप कितना दिल से प्रे करते हो. उस दिन लगता है ना कि आज तो भगवान जी ने सुन ही लिया. हम लोग को पता होता है किस दिन हम लोग दिल से कर रहे होते हैं, किस दिन ना कि हाँ काम निपटाओ टाइप का कर रहे होते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी पढ़ लो, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, जल्दी से नहा के पाठ कर लो. हमको पता होता है कि किस दिन हमने मन से दिल से पूजा की है और किस दिन हमने ऐसे ही की है करने के लिए. तो वैसे ही आपको इसको दिल से करना है. एंड इट विल इंक्रीज योर ग्रैटिट्यूड फॉर योर टॉप डिजायर्स. जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा उतना ज़्यादा और जल्दी वो लाइफ में आएगा. ओके, सो शी इज सेइंग कि आपको दिल पे हाथ रख के करना है, जोर से बोलना है, मन में बोलना है, जैसे भी करना है ये करना है. सो दिस इज टुडेज प्रैक्टिस, दैट यू हैव टू रीड योर लिस्ट विद योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड यू हैव टू से थैंक यू. दैट इज द प्रैक्टिस, कि आपकी जो टॉप 10 लिस्ट है बस आपको वही पढ़नी है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use
heart magic anytime you say the magic words, thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. यस Once you या जितना ज़्यादा हम हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ेंगे. शी सेइंग इट विल हैव अ बिग इफेक्ट ऑन योर हैप्पीनेस एंड ऑन द मैजिक इन योर लाइफ. जब आप हैप्पी फील करोगे तो अब देखिए इसके पीछे साइंस है. सिर्फ आप इसको पैराग्राफ को ना ऐसे पोइटिक टाइप पढ़ के मत पढ़िए. आप हैप्पी फील करेंगे तो क्या होता है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ गड़बड़ होता है आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, है ना. आपने देखा है कि बेस्ट होता है कि जब बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बुक कहाँ गई है, कौन कहाँ पढ़ा, उनको कोई मतलब नहीं. दे आर सो हैप्पी. मम्मी डांट रही है कि नहीं तुमने खाना नहीं खाया, कि तुमने टीवी नहीं बंद किया, कुछ फर्क नहीं. दे आर हैप्पी. सेकेंड एग्जाम्पल, जब एंगेजमेंट हो जाती है, आपको कोई चिंता रहती है नहीं. जिनकी हो गई है, लाइक नहीं भी हुई है तो वी हैव सीन इट. हाँ, देयर आर मेनी ऑफ अस जिनकी नहीं हुई है. हाँ, हमने देखा है दूसरे लोगों को वो क्या करते हैं, एकदम हैप्पी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रात रात भर बैठ के फोन पे बातें कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. दे आर इन देयर ओन जोन. व्हाई? दे आर सो हैप्पी. हाँ, फिर क्या होता है, बाकी लोग भी धीरे से उसको इग्नोर कर देते हैं कि क्या बोले, उसको तो कुछ असर नहीं होगा, वो तो अपनी दुनिया में. बोलते हैं ना, थोड़े दिन लोग अटेम्प्ट करते हैं फिर यही बोल देते हैं ये तो अपनी दुनिया में. ये क्या हो रहा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. आप हैप्पी हो तो पीपल आर लेटिंग यू बी. तो दिस इज again law of attraction at work, that when you are happy everything around you will be happy. क्यों? आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, सब कुछ अच्छा दिखने लगता है. You are just seeing the whiteness around you. ब्लैक पॉइंट्स पे जाता ही नहीं है. हाँ, आपने देखा है कई जन एकदम साइंटिस्ट लोग देखें कैसे, जैसे जनरली मूवीज में दिखाते हैं, कहीं पढ़ो, दे आर सो इन्वॉल्व्ड इन देयर वर्क. उनको मतलब ही नहीं कि उनके कपड़े कैसे हैं, कि उनके सॉक्स मैचिंग है कि नहीं, कि खाना कैसा है, उनको कोई सुध नहीं है, बस अपने काम के पीछे पड़े हुए. सो दैट इज व्हाट इज will happen when we are happy. Everything around us will be positive. Okay, so this is what she's saying. If we are feeling happy, there will be more magics in our life. And उसमें heart magic बहुत ज़्यादा important है. It will speed up everything good around you. Yeah, please continue. Yeah, sorry. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you increase the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you never felt before. या तो जब हम हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करेंगे तो शी सेइंग कि जितना ज़्यादा हम अबंडेंट फील करेंगे, कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड होंगी, उतना हम लोग को अच्छा लगेगा. इस बुक के पहले कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने कोई पहले की बात, सैड बात याद करके रोने लगे? हुआ ऐसा? हाँ, आई हैव सीन माई मॉम एंड मैनी अदर्स ऑल्सो. बस एक जैसे बोलते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ रख देना, जैसे नहीं बोलते हैं, दुखती रग को छू दिया, माने आपने कुछ नाम लिया और पट पट आंसू निकलना शुरू हुआ. आपके संग ऐसा? हाँ, Yeah, it 2 happens. दिन. हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक इट यूज्ड टू हैपन. हाँ, 2 दिन पहले क्लाइंट का क्या हुआ, मार्क्स कैसे आए, एग्जाम कैसा हुआ, माने हर जन के संग होता है. तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वी आर रीलिविंग दैट पास्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और हमारी फीलिंग्स वैसी ही आ जाती हैं. हुआ नहीं है दोबारा, लेकिन फीलिंग्स ऐसी आ जाती हैं. कभी कोई किसी को बोलो कॉकरोच, तुरंत सब डर जाते हैं. हाँ, हार्ट बीट तेज हो जाती है. क्या होता है, सेम बॉडी में बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन आ जाता है. तो अब हमको क्या करना है, हम लोग को फ्यूचर में जो चीज़ चाहिए, जब अपन हार्ट मैजिक कर रहे हैं, हम अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ रहे हैं, ड्रीम लिस्ट में हमने क्या लिखा है कि वो चीज़ मेरे को ऑलरेडी मिल गई है ना. तो जब हम उसको पढ़ के ग्रैटिट्यूड करेंगे, माने हम अपने बॉडी में पहले से ही वो फीलिंग्स जनरेट कर ले रहे हैं जो हमको मिलने वाली हैं, है ना. लाइक व्हेन यू अचीव योर बोर्ड के एग्जाम्स का रिजल्ट, अगर आप अपने बच्चों को सोचो उसका ये रिजल्ट, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, तो वही फीलिंग्स आपके बॉडी में आपके बार पॉजिटिव फीलिंग्स हमको जनरेट करनी है, जो फ्यूचर में मिलेगी, लेकिन उसके लिए हम अभी से ही ग्रैटिट्यूड करके वो पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं. तो शी इज सेइंग जब खुशी के आंसू आते हैं ना, तो शी इज सेइंग दैट कि जब आप दिल से इतना ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कि आपकी जो ड्रीम थी वो आपको मिल गई है, तो क्या होगा, मे बी यू विल फील, आप कि कुछ यहाँ पे हो रहा है, यू विल फील जॉय, यू विल फील अ टिंगलिंग सेंसेशन, या आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं. अगर ये सब कुछ नहीं भी होता है तो भी शी इज सेइंग कोई ज़रूरी भी नहीं है
बट ऐसा हो भी सकता है कि आपको ये सारे सिम्टम्स आएँ, और अगर नहीं आते हैं तो भी यू विल फील इमेंस हैप्पीनेस एंड पीस, जितनी पहले कभी नहीं हुई है। ओके, सो दिस वाज टुडेज प्रैक्टिस। और आप और भी देखिए, कितने सारे जन कहते हैं कि कि जो दिल की बात सुनता है वो ही आगे बढ़ता है। लाइक आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ देम, लाइक जो भी आज पॉपुलर है, सक्सेसफुल है, दे हैव फॉलोड व्हाट देयर हार्ट इज सेड, स्पेशली दीज क्रिएटिव पीपल, है ना। कितने जन आप देखिए ना, वो लोग बोलते हैं, राइट ब्रदर्स ही थे, कितने बार उन्होंने ट्राई किया होगा उड़ना, है ना, जिन्होंने एयरप्लेन इन्वेंट किया था। आपको लगता है उसने एक बार में उड़ना सीख गया होगा? जब उसने बोला होगा ना मैं उड़ना चाहता हूँ, सब लोगों ने उसको बुद्धू ही कहा होगा, पागल ही कहा होगा। सेम विद एडिसन, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, ही सेड ना आई ट्राइड 100, बोला तुम 100 बार ट्राई कर चुके हो और तुम फेल हो गए। बोलता नहीं, मैंने 100 तरीके देख लिए जिसमें बल्ब नहीं बना। ओके, तो हर जन का देखने का नजरिया अलग होता है, आप उसको बस फॉलो करना है। ओके, एंड जितना ज्यादा दिल से हम कोई चीज को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर रिजल्ट आएगा। देयर वाज अ वेरी नाइस कोट बाय रूमी। रूमी इज द फेमस पोएट ना, ओनली फ्रॉम योर हार्ट यू कैन टच द स्काई। ओके, मतलब आप अगर दिल को फॉलो करोगे तभी आप बुलंदियां हासिल कर सकते हो, है ना। दैट इज व्हाट, सो यू शुड रन इन द डायरेक्शन योर हार्ट इज टेलिंग यू। So let's do that. Let's feel the gratitude from our heart. Let's follow what our heart is saying. Let's be more compassionate and attract more and more positivity in our life. Okay. So let's continue. Yeah. Magic practice number 20, heart magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, and thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Hmm. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Yeah. Hmm. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो आपको क्या करना है, आप लाइक सी यू कैन ट्राई व्हाट आई डू। आप जब सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखोगे, उसके बाद जब आपको उसको पढ़ना है तो आप अपने दिल पे हाथ रख के उसको पढ़िए और जोर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। इफ़ यू कैन, इफ़ यू फील कि कोई सुन लेगा, आप कॉन्शियस हो तो मत करिएगा, एटलीस्ट दिल पे हाथ रख के रीड इट एंड सी हाउ यू आर फीलिंग। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको दिन में कई बार जब भी आप थैंक यू बोल रहे हो, याद करके देखिए। इफ़ यू कैन फोकस योर अटेंशन ऑन योर एरिया ऑफ योर हार्ट एंड देन से थैंक यू। इफ़ यू वांट कि आपको नई फीलिंग्स नहीं आ रही है तो कभी अगर पॉसिबल हो तो आप आंख बंद करके भी फील द थैंक यू फ्रॉम योर हार्ट। सेकेंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपको अपनी डिज़ायर लिस्ट लेनी है और उसको हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करना है उसके ऊपर। कैसे करना है, आपको हर एक डिज़ायर को आपको पढ़ना है दिल पे हाथ रख के, फिर आंख बंद करके दिल से फील करना है कि आपके दिल से वो थैंक यू निकल रहा है। ओके, सो दैट वाज द प्रैक्टिस, एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप यू हैव टू डू योर मैजिक रॉक। सो थैंक यू प्रीति जी फॉर रीडिंग दिस स्वीट एंड Thank you so much, Priya ji, for giving me the opportunity to read. Thank you so much. Thank you so much. Yes, so let's do some gratitude and affirmations, and then we will take some questions or sharings. So let's join our hands and let's do the affirmation. I am blessed, I am grateful, I am loved, I am loving, I am super energetic, I am powerful, I am open and receptive to each and every good thing happening in my life. I am a money magnet. I am full of positivity. I am a beauty with brains. I am thankful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for showing me this path of gratitude. Thank you for bringing all of us here together for learning this path of gratitude. Thank you for filling our life with happiness and joy. Thank you for my super amazing parents who brought me into this world and gave me all the things I needed. Thank you for all the love and affection I have been given by my friends, my family. Thank you, Rhonda Byrne, for this amazing and simple book for us.
Thank you, thank you, thank you. So thank you, everyone. So any question or sharing? Thank you, Priya ji. Thank you, Shadi. Thank you. Yes, Thank you. thank you. Amazing. So how was today's practice? कैसे किया आपने मैजिक फुटस्टेप्स? वेरी नाइस. कई जन ने शेयर किया है, बट आपको सिर्फ अलग से जाके नहीं करना है, चलते फिरते उठते बैठते भी आपको थैंक यू करते रहना है. ओके, मन मन में कि लाइक आप हर स्टेप के संग थैंक यू कर रहे हो, कि आपके मन में और कुछ आए ही ना सिवाय थैंक यू के. ठीक है, ये नहीं आए करे तुमने ये संयम. सामान नहीं रखा, वो वहां नहीं ज्यादा किया. करो, बच्चे बन क्रॉस हो. जल्दी करो संयम. यस अदिति जी, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड द सेशन. जल्दी ही कर रहे हैं हम तो. यस, या. सो एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? Sorry, ma'am, it was unmuted. I did not know. It's okay, happens. Yeah. I have a unique sharing. Okay, but it has to be, like concise, and I don't want long sharings. Okay, you Short, have to very tell me short. what was the magic, how did you do gratitude. Okay, long Yes. sharings are also good, but I don't want you to कि 10 दिन पहले ये था. Okay, let's start. Yes, please. Yes. So one of my favorite book is Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. I've read it, I think, 6 times, Wow. and I really like it because it truly inspires me. But the first time I think reading it, I was reading it yesterday, and I was being grateful to him for enlightening me, giving me this space. And uska chapter 6 है जिसमें I probably had never paid attention to it. Probably I don't know what, but I realized that he's written that rich people are grateful for their wealth, and they always create charities to spread wealth because they know the real truth that Yeah. only when you share your wealth do you get more. Yeah. Yes. And Yes. I was just amazed at him writing something like this, and then he gave example of Ford, ki how Ford has a foundation where they give money to people, and that is why Ford Enterprise is what it is. So Yes. I was just really taken aback. Ki like I'd read it so many times, but I'd never connected it, and Never Also, noticed. and I speaking was about very sport, our country is full of such people. Our country is so amazing. उन सबको ये सीक्रेट पहले से ही पता था. आप देखो ये इतनी सारी जो कंट्री में धर्मशाला हैं, हाँ, किसने बनाई? आप बताओ. जो थोड़ा सा भी अच्छा करना स्टार्ट कर देता है, वो अच्छे काम करना चालू कर देता है. See, they are the ones who are doing it. लोग बोलते नहीं उनके पास पैसे हैं ना इसलिए कर पाते हैं. नहीं, उनको ये सीक्रेट पता होती है. ये सीक्रेट मूवी में एकदम शुरू में रोंडा बर्न ने ये शेयर किया था. ठीक है, और हमारी कंट्री में सबको पता था ये. आप चाहे बिरला लोगों को देखो, आप टाटा लोगों को देखो, जितने लोग अंबानी लोगों को देखो, सब जन यही कर रहे होते हैं. दीज आर जस्ट द फ्यू. आप देखिए ना, टाटा मेडिकल सेंटर कितना अच्छा काम कर रहा है. आप देखो उसके द वे दे ट्रीट देयर एम्प्लॉइज इज समथिंग Yeah, एल्स. Ratan Tata is amazing. Yeah, I'm like all of these. तो उनके लाइफ में ऐसी वेल्थ बढ़ के नहीं आएगी तो कैसे आएगी? हम लोग उल्टा सोचते थे इसके पहले, इस बुक के पहले आए उनके पास इतने पैसे हैं ना, वो तो करेंगे ये सब धर्म का काम. हम लोग ऐसे बोलते थे. बट अब जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, लगता है कि नहीं, इसलिए हो रहा है बिकॉज दे नो द सीक्रेट, एंड दिस इज द सीक्रेट. व्हाट यू गिव इज व्हाट यू विल गेट. yes, and उसमें exactly यही रखा भी है, पता है. मतलब it goes on to say this, that that people who say that they do not have money to give in charity will never have enough wealth in their life, Yes. and only who give will have that wealth. I can't express how I was just zapped about ki it has never, I'd never taken it in that space only. I never realized that there was gratitude in that space also. So this is what ना, after reading this book, okay, whatever I am reading is like look, ऐसा लगता है ना उसके ऊपर न्यू लाइट आ गई. It is seen in a new light. नहीं हो रहा है. हाँ, जैसे बोलते हैं ना, आप जितने बार पढ़ते हो या जितने बार एक मूवी देखते हो, हर बार उससे कुछ नया मिलता है. क्यों? हमारा स्पेस चेंज होता रहता है ना. लाइक आवर माइंड कीप्स चेंजिंग, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है. हमारी फीलिंग्स उस समय क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग उस सबको परसीव करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं. सो दैट इज व्हाई यू सेड यू रेड इट 5-6 times, and maybe you read it and you never understood what
he was trying to say, है ना? But because now Yeah. you know, you have been practicing gratitude, इसीलिए इसको grasp कर पाए. So very nice. Thank you for this, Tarini. And what a beautiful magical cue it was. Yes, I also you have to start your 10 rupee का thing. Yeah, please start, huh? I will. यस यस। तो आप देखो जो आप दोगे थी, और हमारे कल्चर में तो यही है कि पहली रोटी इसको जानी है, लास्ट रोटी उसको जानी है ना? Mhm. एंड आप देखो घर की फीमेल्स का ये करने का होता है, वो ही जैसा संस्कार बनाती हैं वैसे ही आगे के जन भी सीखते हैं। तो आप देखिए आप घर में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है आपके घर में तो यू कैन स्टार्ट एंड यू विल बी द क्या बोलते हैं उसको, Pied Piper, not Pied Piper. You will be the person to attract happiness and goodness in your life and for your family also. So start doing that. ओके कोई घर में डिलीवरी बॉय आता है ना ठंडी के टाइम में, हाँ आप छोटे छोटे 5 रुपए के आजकल वो फ्रूटी जूस मिलते हैं, है ना? आप उसको दे दो, हाँ ही विल ब्लेस यू, और आप उसके लिए अच्छा करो, ही विल फील सो नाइस, बेचारा गर्मी में आ रहा है, तो स्टार्ट डूइंग दैट। हाँ गाड़ी में कुछ बिस्किट्स रखिए, दे दीजिए किसी को, हाँ नॉट नेसेसरली कि वो मांग ही रहा है, आप दे दो। स्टार्ट डूइंग दिस एंड यू विल सी, यू फर्स्ट तो आपको अच्छा लगने लगेगा, यू विल फील वाओ आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे को ये मौका मिल रहा है किसी और को हेल्प करने के लिए। ओके लिटिल लिटिल थिंग्स, चीट आप बोले नहीं उतना नहीं करना मेरे को, आप चीटी के लिए आटा रख दो, आप चिड़िया को ही दाना दे दो, चिड़िया के लिए पानी रख दो, स्टार्ट डूइंग दिस एंड यू विल फील ऑसम। ओके एंड उसका जो रिटर्न आएगा ना वो मल्टीप्लाई होके इतना ज़्यादा आएगा। ओके सो लिटिल लिटिल थिंग्स, कीप डूइंग, कीप थिंकिंग। और सबसे ज़्यादा लाइक आई रेड जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने सुना कि हमारी टोन जो जैसी होती है वैसे ही हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। इफ़ यू आर जस्ट कीपिंग अ चेक ऑन द टोन ऑफ योर वॉइस कि आप किस तरीके से किससे बात कर रहे हैं, यही तो होता है ना, टॉन्ट करना ये वो ये सब उसी से सारे रिलेशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन दैट एंड अट्रैक्ट मोर एंड मोर हैप्पीनेस। ओके सो टुडे वाज द एंड ऑफ द 3rd वीक, और आज रोंडा बर्न ने हमको बताया है क्यों, क्योंकि इसके पहले हम दिल को कितना लाइटली ले रहे थे, है ना? इतने गाने बने हुए दिल के ऊपर, हाँ दिल का क्या कसूर, दिल की क्या बातें करना। बट आज हमको समझ में आ रहा है कि फीलिंग्स इज ऑल, आप देखिए ना इमोशन क्या होता है, एनर्जी इन मोशन। इमोशन कहाँ से आते हैं? हार्ट से आते हैं। तो एनर्जी इन मोशन माने अगर आपने जितना इमोशन को स्ट्रॉन्ग करके ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी मूव करेगी और हमारे लाइफ में चीज़ें आएंगी। सो लेट्स बी मोर ग्रेटफुल, फील द ग्रैटिट्यूड एंड अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। ओके सो टुमारो आई वांट मोर कैमराज ऑन बिकॉज लास्ट वीक है या एंड मोर शेयरिंग्स। आपके लाइफ में अगर मैजिक नहीं हो रहे हैं तो किसकी कमी है? ग्रैटिट्यूड की कमी है। ओके अवेयरनेस की कमी, या हो रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो दोनों चीज़ें करिए। एंड मेरे संग भी आज आई हैड गॉन शॉपिंग, इसीलिए आज थोड़ा सा ऐसा लेट हो गया। इट्स नॉट दैट द होल डे आई वाज शॉपिंग, जस्ट मी एंड मॉम, सो वी वेंट आउट एंड आई वाज डूइंग मैजिक डस्ट ऑल्सो। तो एक लेडी थी, बोली आज ही सेल का लास्ट डेट है, बट आई वाज बाइंग समथिंग फॉर माई ब्रदर। तो हमने बोला मेरे को साइज़ का पक्का नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट इन टाउन। वो ऐसे तो सेल का लास्ट दिन आज ही है, हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बट ओके ठीक है। एंड हम मन में थैंक यू कर रहे थे कि नहीं वो कर लेगी, इज लाइक क्या है। बोले नहीं फिर सेल के बाद तो चेंज नहीं होता है। तो देन आई सेड आई आस्क्ड हर नेम, शी सेड माय नेम इज पूर्वा। आई सेड ओके थैंक यू सो मच पूर्वा, यू हैव बीन सो काइंड, तुमने इतना सब साइज वाइज दिखा दिया, बट आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे भाई नहीं है, ही विल कम बैक आफ्टर अ वीक, सो प्लीज चेंज इट। एंड शी एक्सेप्टेड। बताइए सेल के बाद कोई आइटम चेंज करता है? आई हैव नॉट सीन, नहीं करता है। बोलते नहीं ये प्राइस वो प्राइस सब थोड़ा सा तो ऐसा करते हैं ना, बट शी एक्सेप्टेड and I was like so happy and so thankful कि ये हो गया। तो like this is how it happens and आपको सिर्फ gratitude करना है। and I was so happy the whole day, I had a chocolate shake this that, तो like happy थे। तो I think इसीलिए ये भी हो गया। तो जैसा फील करते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं एंड आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे ये। ओके आप देखोगे आपके हेल्थ में भी आपको 100% इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा इफ़ यू आर डूइंग दैट वाटर ग्रैटिट्यूड। एंड अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो और उसमें भी आप हेल्थ के बारे में कुछ बोल रहे होगे, तो आपको डेफिनेटली उसमें मैजिक दिख रहा होगा। जस्ट बी मोर अवेयर, इंक्रीज योर ग्रैटिट्यूड। जैसे बोलते हैं ना इंक्रीज द डोज, है ना, बोलते हैं ना TLC, इसकी तो बहुत पहले लव के ऊपर में था ना कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो जस्ट इंक्रीज द डोज ऑफ व्हाट? ग्रैटिट्यूड, योर फीलिंग्स, and it will definitely come back to you. ओके एंड देखिए जितनी ज़्यादा आप इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ेंगे उतना अच्छा, जितने लोगों को आप सुनेंगे उतना अच्छा, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना है। तरिनी बुक पढ़ रही है, आपको जो बुक अच्छी लगती है
आप पढ़ो, कीप योर सेल्फ ओपन टू सच अमेजिंग थिंग्स विच आर देयर फॉर अस। इतनी बुक्स लिखी हुई हैं, दे आर जस्ट दे लाइक जस्ट ट्रेजर्स। उनको पढ़िए। अब जब आप पढ़ोगे ना, आपको कुछ डिफरेंट समझ में आएगा। पहले लगता होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, एंड आई वॉज ऑलवेज अ फिक्शन पर्सन, सिर्फ बुक्स पढ़ते रहते थे। अब वो बुक्स चेंज ही हो गई हैं, अब सिर्फ ऐसी ही बुक्स हैं मेरे पास, वो दूसरे शेल्फ में रखी हुई हैं, अब यही सारी बुक्स हैं, एंड आई रीड सब, कभी ये पेज कभी वो पेज, तो पढ़िए, यू विल फील द डिफरेंस। एक एक लाइन अब लगता है कि कुछ ना न्यू चीजें सिखा रही है आपको। ओके, सो स्टार्ट डूइंग दैट, लिसन टू गुड पीपल, है ना, जो आपको, जिससे आप रेजोनेट होते हो उसकी बातें सुनो। आपको लगेगा कि हाँ सब तो सेम बात बोल रहे हैं, एक्चुअल में सब सेम बात बोल रहे हैं, सिर्फ रोंडा बन ने उसको कितना सिंपल कर दिया है अपने लाइफ में उतारने के लिए। ओके, सो स्टार्ट डूइंग दैट एंड जस्ट मेक योर लाइफ more magical and amazing. Okay, so thank you everyone, see you all tomorrow. Keep your dream list here, and feel the gratitude that you have got it. Okay, so thank you, good night, and see you all tomorrow. Bye bye. Good night, Bye-bye. Priya ji. Good Thank night. you. Take care. Thank you. Thank you so much. Bye bye, Anjali. Bye. Bye.